Discussing chapter number 10, which is about network functions. And basically, whatever we have studied until now, uh, these are some sort of functions, and we have been trying to the techniques to calculate them. This means, most of the time we had been calculating impedance functions, and we have also learned about some other functions. For example, we have looked at four things, I think. There was a small table in which these were shown what types of functions are there, and there can be more functions as well. Basically, that's the thing. So that can be voltage transfer ratio as well, transfer functions from the two ports, table 10-1. So we have already seen this. It is somewhere on page 281. So 281. Yeah, this is chapter table 10.1. So we can have many sorts of combinations. Uh, on the first column is showing the numerator, denominator, sorry, and the second and third are showing. Second, basically, first row is basically showing the numerators, V2 and I2. If our numerator is V2 and denominator is V1, then it's a voltage transfer function from port when we are linking the voltage of port 2 with port 1, and that is abbreviated by G12. You can say it voltage gain as well. Uh, if we have I2 in the numerator and I1 in the denominator, and current at the output port, current at the versus the current at the input port, this is alpha 1 2, it's a current gain. And if we have got V2 in the numerator and I1 in the denominator, it is Z12. It is also a transfer function, but impedance. I2 versus a V1 gives us Y12. It's an admittance, and there can be many more options are there. These are for two transfer functions for the two port. And we also know that if at the same port, driving port, we can call it, we can find the less number of possibilities are there, but still we can find few things. So we have last time we had looked at few things, few functions, and how to calculate them. Basically, it's a good idea that here we have made effort how we can we write directly these functions. So yes, it is good to do that. तो अगर आप भी इसको करना सीख लें कि mostly we are more familiar with the differential equation. So if we are not comfortable in the beginning, do write the differential equation first, then convert it to Laplace transform, and then uh, after rearranging find uh, the function which we are interested. But if you have got more practice, you will be able to do it directly. अच्छा, उसके अलावा वी हैड सीन दिस थिंग लास्ट टाइम एज वेल थिंक, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो दिया था ना उसमें आपको याद होगा कुछ वो पिक्चर सही क्लियर नहीं थी, तो फिर मैंने दोबारा कोशिश करके लिया है, तो ये आपको भी आपके फाइल्स एरिया में मौजूद है, अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें. तो what we is talking about के all network functions which we have computed have been quotient यहाँ से that, so this it was an old book, so but still very good, but it has few bad things. इसमें when he starts a new concept he does not give a proper heading, so from here it is starting to talk about something very important, but we observe, so it is something new here.
उफ, हाँ मतलब सॉरी, अभी ये इतनी देर तक ये ना कुछ मेरा सिस्टम जो है ना फारिग हो गया, कुछ करना ही पड़ेगा मैंने। ये कुछ किया है मैंने लेकिन कामयाब नहीं हुआ, नई विंडोज़ डाली है, बड़ा कुछ किया लेकिन। सो इट वाज सम एग्जांपल जिसमें इन विच वी वर टू फाइंड दिस करंट गेन एंड द वोल्टेज करंट ट्रांसफर फंक्शन एंड द impedance transfer functions. So you can see it. I think इसमें अब इतनी मुश्किल आपके लिए नहीं होगी, या किसी को अगर मशकूक लग रहा है तो चलो मैं खैर। So it's not that difficult anymore. You can write differential equation, then you can do it, or you can do directly. तो आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्ट करने की कोशिश भी करें, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ वेरीफाई करें कि आपने सही किया कि नहीं। सो व्हाट he is talking about some comments here that's very important. But we have observed about these network functions. All sorts of network functions basically are quotients of polynomials in S. ठीक है जी, पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी रेशोज कह लें, फ्रैक्शंस कह लें, और जनरल फॉर्म इज दिस वन, इक्वेशन 1022। ये ऊपर जो कुछ है नोमिनेटर में, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये n लिखा हुआ ऊपर। आई थिंक इट इज क्लियर। इसको मैं और बड़ा कर सकता हूँ तो यस आई कैन डू इट, हमें यार ताकि आपको और बेहतर नजर आए। तो ये यू कैन लुक एट दी नोमिनेटर। नोमिनेटर सिर्फ नोमिनेटर की बात हो रही है। सो नोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल जिसमें हम जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो s है, और उसकी जो मैक्सिमम डिग्री या पावर है वो n है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहलाती है ये। ठीक है जी, और साथ ही कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 अप टू an, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने हमें आमतौर से जो कन्वेंशन है, वी राइट द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ n, s raised to power n, s to n minus 1 इन द एंड। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारी जो कोफिशिएंट्स हैं वो मौजूद हैं। देन वी हैव द सेकंड, the denominator also, it is a polynomial of degree m. So we are at the moment considering the polynomials in the numerator and the denominator have different degrees. Okay? This is mostly the time we have different degrees. Sometime we can have same degrees. So लास्ट चैप्टर में हमने जो चैप्टर 9 देखा था, उसमें हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की थी, याद होगा, और उसके लिए मैं आपको चैप्टर 3 से भी कुछ चीज़ें निकाल के दी थी, आपको भेजी भी थी कि हम इसके लिए डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो राइट कर सकते हैं। वेल डिटर्मिनेंट आप नहीं भी कर सकते तो कोई परेशान होने की बात नहीं, यू कैन स्टिल डू इट। तो ये डेल्टा है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द इम्पिडेंस मैट्रिक्स Z। ठीक है जी, वो सारी मल्टीपल जहाँ पर आपके पास पोर्ट्स हैं वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसके लिए था। तो हम सिंगल पोर्ट के लिहाज भी कर सकते हैं, नहीं मल्टीपल पोर्ट्स नहीं, मल्टीपल लूप्स की बात हो रही है सर। So this equation derived from the conditions we have assumed for the two-port network or for the one-port network with J is equal to K is equal to 1. And in this equation, this delta is the determinant of the impedance matrix, and delta JK is a cofactor of delta with row J and column K deleted. ठीक है जी, तो जो ऊपर वाला डेल्टा है, ठीक है जी, ये डेल्टा सब J के वो क्या है, वो कोफैक्टर है जिसमें से ये रो J और कॉलम K जो है वो डिलीट होंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन करने से लोगों को पता लगा।
वैसे जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, टिपिकल एलिमेंट इन डेल्टा और डेल्टा जेके के अंदर भी जाहिर सी बात है वो होगा, सिर्फ तो डेल्टा जेके में वो जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जो है वो डिलीट करने से निकलता है। तो ये जो डेल्टा है बेसिकली इम्पिडेंस मैट्रिक्स से बनता है, उसकी जो एक एलिमेंट उसने शो किया जेड जे के, तो उसमें यही तीन हमारे पास चीज़ें होती हैं। एक है आपके पास रेजिस्टेंस, एक है आपके पास इम्पिडेंस ड्यू टू योर इंडक्टर एल इंटू एस, एल एस लिखते हैं, बाकी ये सब्सक्रिप्ट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग वो उसके जो रो और कॉलम के लिहाज से है, और जो कैपेसिटर है उसके लिए 1/CS, और उसका भी कॉरस्पॉन्डिंग जो सब्सक्रिप्ट शोज दी कॉलम जो रेलेवेंट है। So इसमें what is happening? The evaluation of delta and delta JK will involve products, sums and quotients of terms like that of equation to 1024. इस किस्म की we have got when we are trying to write the full delta or delta JK, we will have these things in it. ठीक है जी, और will therefore always result in a rational coefficient of polynomials of the form. Well, इससे जो कुछ हम बनाएंगे, जो कुछ लिखेंगे, इससे हमें जो पॉलिनोमियल्स मिलेंगी वो किस किस्म की होंगी? वो रैशनल कोएफिशिएंट होंगे ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, जो अभी हमने ये ऊपर देखी है, क्या नाम है, इक्वेशंस। इसका मकसद क्या है बेसिकली? ये बात है कि ये व्हेन वी से इट इज रैशनल कोएफिशिएंट, व्हाट डज इट मीन? वोल्टेज रेशियो एंड करंट ट्रांसफर फंक्शंस आर आल्सो आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वेश्चन 23, ये ऊपर जो हमने लास्ट टाइम देखी अभी। और आई के इज इक्वल टू वी ओवर इम्पिडेंस होती है ना, तो इम्पिडेंस का जो इनवर्स है वो एडमिटेंस है। आई इज इक्वल टू इम्पिडेंस टाइम एडमिटेंस टाइम वोल्टेज। सिमिलरली वी वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू जी, और ये जे जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट के लिहाज से या उस लूप के लिहाज से कह सकते हैं। सो दैट दीज नेटवर्क फंक्शंस मे बी रिटन एज द कोशेंट ऑफ इक्वेशन 1023 मल्टीप्लाइड बाय आइदर वाई के और जेड जे। सो we will have some mathematical form, तो मैथमेटिकल फॉर्म की स्पेसिफिक जो बातें हैं ना वो बेसिकली हम आगे देखना चाहते हैं। वेयर आर वी? ऊपर तो नहीं चला गया। अच्छा ठीक है, ये कुछ हमने लास्ट टाइम वैसे किया था। द कैलकुलेशन नेटवर्क फंक्शंस, तो इसमें है लैडर नेटवर्क्स। तो लैडर नेटवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली when we talk about communication circuits or when we talk about transmission systems। तो उसमें जो आपके सर्किट के जो ये ट्रांसमिशन लाइन है विच इज कनेक्टिंग बिटवीन फ्रॉम अ डैम बेसिकली मे बी टू अ ग्रिड स्टेशन और फ्रॉम ग्रिड स्टेशन टू द यूजर्स, सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तकरीबन यही हम आज भाई उसकी क्या होता है इसी में क्या ये ते इधर भी नहीं रह गई है, ऐसे सेता पड़ गया तो पता नहीं पड़ गया ऐसे करूं बकाया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कर लें। The ladder network has a specific form, specific you can say interconnection structure। और आपको एक्सक्यूज याद मी होगा सर। मैं, जी बेटे। सर आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे एक ब्लैक रेक्टेंगल शेप की स्क्रीन आई हुई है सर, इसको काइंडली रिमूव कर सकते हैं आप? अच्छा मुझे नजर नहीं आ रही, ये टॉप राइट पे, ये शायद यस ये सर। डोंट शो अगेन करते हैं। अब क्लियर हो गई? यस सर, थैंक यू अच्छा सर।
अच्छा, मुझे सिर्फ वो लाइट शो कर रहा था और आपको ज़्यादा तंग कर रहा था, सॉरी। ये सिस्टम्स जो है ना, ये हमें परेशान करते रहते हैं। अच्छा जनाब, इमिटेंस फंक्शंस। इमिटेंस आपको याद होगा, हमने क्या जिक्र किया था, एडमिटेंस और इम्पिडेंस दोनों को कंबाइंड वी कैन से इमिटेंस फंक्शंस, ठीक है जी। तो कभी हमें एडमिटेंस निकालनी होती है, कभी हमें इमिटेंस निकालनी होती है। सो अ सिंपल नेटवर्क इज शोन हेयर। फॉर एग्जांपल ये पोर्ट 1 यहाँ पर है, अगला ही इसने पोर्ट शो नहीं किया है, तो यहाँ पे Z1, फिर यानी जो सीरीज़ में एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं या ब्रांचेज हैं, उनके जो इम्पिडेंस है उनको उसने Z1, Z3, Z5, Z7 से शो किया हुआ है। और जो अक्रॉस यानी पैरेलल में आपके पास एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उनके उनके कॉरस्पॉन्डिंग एडमिटेंस के फॉर्म में शो किया हुआ है। ये क्यों किया था, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इट इज़ ईजियर। आपको याद होगा, अपने वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के फॉर्म में फाइंड आउट किया था ओवरऑल इम्पिडेंस, तो उसमें बेहतर यही रहता है। अच्छा सॉरी जनाब, ये कोई और मुदाखलत शुरू हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जनाब, कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा जनाब, सो दिस इज अ सिंपल लैडर। सो लैडर नेटवर्क कैन कंटेन आर्म्स, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो दिस इज अ सिंपल वन, सो टू हैंडल दिस वन इज easier, bit complicated is there. ये देखें, a non simple ladder. So what we have here, we have got in fact some combinations. अच्छा, जो रियल नेटवर्क्स हैं बेसिकली वो इसी किस्म के होते हैं। मतलब हम मॉडल तो कर लेते हैं एज अ सिंपल लैडर, लेकिन एक्चुअली जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, एक्चुअली तो इतनी सिंपल नहीं होती उसका बिहेवियर। सो लेकिन फॉर वेरी हाई लेवल एनालिसिस यू कैन से, वहाँ पर आप उन सारी चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर आप सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सिंपल नेटवर्क इस्तेमाल कर लेंगे। बट हेयर इवन हेयर वी कैन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लंप कर सकते हैं एक सिंगल एलिमेंट में। दैट वी हैव दिस Z1, then we have this Y2, Z3, Y4, something like that. It is still quite possible. अगर ये सिंपल इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये स्टिल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं वो। अब इसमें देखें, फॉर प्रैक्टिस क्या करते, सीरीज आर्म्स बाय देयर इम्पिडेंसेस, वही दो जो सीरीज में एलिमेंट नज़र आ रहे हैं उनको हम इम्पिडेंसेस की फॉर्म में लिखें, और जो शंट आर्म्स हैं यानी जो ये पैरेलल में आ रही हैं वो एडमिटेंसेस से लिखें। ठीक है जी, ये सीरीज आर्म कहलाते हैं ये वाले, ये Z1, Z3, Z5 ये सीरीज आर्म है। और इधर गया करंट, और दूसरा जो है ना ये आपके पास ये जो है ये ब्लू में लिख रही है शंट। ठीक है, शंट या पैरेलल। तो शंट का लफ्ज़ ज़रा आजकल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन है सही से बात है, इस्तेमाल तो होता है ना जी। अच्छा जनाब, सो लेट्स कम बैक, हम कहाँ चले गए थे। We first consider computation of driving point impedances for the network. पहले हम ड्राइविंग पॉइंट की करना चाहते हैं, ठीक। और अभी नहीं, एक होता है टू पोर्ट, तो टू पोर्ट के लिए सिर्फ ड्राइविंग पॉइंट की जब बात करें तो मतलब वन पोर्ट की बात हो रही है। So if we are finding an open circuit or short circuit parameter, we assume that the appropriate port is prepared by being either open or shorted. अभी आएगी चीज़ें कैसी होती है सर्किट पैरामीटर्स, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज कह लें, शॉर्ट सर्किट करंट कह लें। ठीक है, we begin our computations at the port other than the one for which a driving point impedance is being found. That's the way. ये हमने लास्ट टाइम इसको ठहरे हैं, अभी change it back, we better see. So here is the procedure. ये सही बात है, ये ज़्यादा मोटा होगा, सॉरी। How do we do proceed? कि जिस पॉइंट पे हमने निकालना है ना, उससे हम दूर यानी उसके फार एंड से हम शुरू करेंगे। जैसे ये अभी जो फिगर आपके पास ऊपर नज़र आ रही थी, फिगर 10-10, जिसके अंदर आपके पास वी हैड गॉट 3, ये 10-10,
इसको जब करेंगे तो हम बेसिकली, अगर हमने पोर्ट नंबर 1 पे इसकी इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फार एंड, ये इम्पिडेंस, और उसके साथ फिर ये आगे, यानी वी विल गो फ्रॉम दिस एंड, गो फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड. तो दैट्स आवर टेक्निक. सो तो अगले पोर्ट से शुरू करना है. मकसद ये है कि हमने दूसरे एंड से शुरू करना है, फार एंड से. इसमें 6 इसकी आर्म से, तो यहाँ से बात करें तो वी बिगिन विद y6. ठीक है जी. इट इज़ फर्स्ट इन्वर्टेड एंड कंबाइंड विद z5. तो इन्वर्ट करने से क्या होगा, दैट एडमिटेंस विल बिकम इम्पिडेंस. इम्पिडेंस और इम्पिडेंस जो है वो क्या हो सकते हैं, वो जो है फ़ौरन वो जा सकते हैं, एडअप हो सकते हैं. यानी हम इसको एक बार जब सीरीज़ में चीज़ें होंगी उसको हम इम्पिडेंस बनाकर इनको ऐड करेंगे, जब पैरेलल में आएंगी तो इनको एडमिटेंस बना के ऐड करेंगे. यही टेक्निक हमने लास्ट टाइम सीखी थी. इट इज़ ईजियर, वी कैन डू इट लाइक दैट. सो दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड अंटिल द प्रोसेस टर्मिनेट्स. ये है एक, लास्ट टाइम ने ये देखा था. ठीक है. टोटल इम्पिडेंस जो होगी विच इज़ ऑब्जर्व्ड एट दिस पोर्ट 1 विल बी like this. This equation is known as continued fraction. ये एक अच्छी चीज़ है. फर्स्ट ऐसी बात है, शुरू में आपको ज़रा मुश्किल लगेगा. कंटिन्यूड फ्रैक्शंस सीम्स टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, 1 over this plus this then 1 over लुक्स डिफिकल्ट एंड, लेकिन आपने इस एंड से यहाँ से शुरू करना है काम. ठीक है जी. इसको इन्वर्ट किया, फिर इसको Z5 के साथ ऐड किया, फिर इसको इन्वर्ट किया, Y4 के साथ ऐड कर दिया, फिर इसको इन्वर्ट किया, Z3 से ऐड कर लिया. सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी लॉजिकल एंड सिंपल वे. तो इस तरह से चाहे वो सिंपल लैडर नेटवर्क था या नॉन सिंपल लैडर नेटवर्क था, तो बोथ कैन बी हैंडल्ड इजीली. ठीक हो गया जनाब. ये आगे एग्जांपल थी, मैं ख्याल लास्ट टाइम ने देखी भी थी. ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 10-11. ठीक है जी. ये फिगर 10-11 है. ओपन सर्किट मतलब ये जो है ना, हम इस एंड पर हमने इसको ओपन सर्किट ही ले रहे हैं. तो बेसिकली मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं. तो कैसे किया था कि ये जो है पहले Y4 जो है, बड़ी आसान सी वैल्यू इसने ली हुई है, 1 हेनरी, और ये तो पहले यहाँ पर भी S वगैरह लिखा नहीं है साथ, तो मुझे हमें S लिखना होगा तभी वो सही बनेगा. ठीक है. दिस इक्वेशन इज रिड्यूस बाय स्टार्टिंग लास्ट टाइम कंबाइंड टर्म स्टेप बाय स्टेप. इसने पूरे वो अंदर वाले दिखाए, आपको कहाँ दिखाए हैं, यहाँ पे दिखाए 1 over S. ठीक है जी. तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी एडमिटेंस है यहाँ पर, ये Y4 कैपेसिटर की जो इम्पिडेंस होती है 1 over CS होती है. C 1 के बराबर है, तो 1 over S एडमिटेंस होगी S के बराबर. ठीक है. ये लास्ट टाइम मैंने ये आपको बड़े अच्छे तफसील से किया था, वो आपके पास जो कमेंट्स है ना उसमें ये मौजूद है, इसलिए काइंडली वहाँ से देख लीजिएगा. उसमें मैं दोबारा वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता. अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट मेथड यूज टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शंस फॉर द लेटरल. अच्छा, ये जो है ये तो था ना ड्राइविंग पॉइंट या 1 पोर्ट के लिहाज से. अगर आपने ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड आउट करने हो लैडर नेटवर्क के, फिर क्या करेंगे?
इसमें कहते हैं वी स्टार्ट एट द आउटपुट पोर्ट एंड देन वर्क टुवर्ड्स द इनपुट पोर्ट। इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो वो अप्लाई होंगे, और उसमें क्वेश्चंस आएंगी। सो दैट्स अ थिंग, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर ये इसमें एग्जांपल नंबर 8 जो है दैट शोज इट। ये मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम हमने इसको भी डिस्कस किया था कि नहीं। लेट्स सी। ये नेटवर्क वही वाला है, मैं खाली इसको भी हमने डिस्कस किया था, तो मैं कुछ तेज़ी से किया था। मतलब आप पहले आपने क्या किया, ये दोनों जो है KCL और KVL आप बारी बारी लगा रहे हैं बेसिकली। लेकिन इसके अंदर भी हमने वैसे कहा तो ये कि इसने वेयर वी आर स्टार्टिंग, वी आर टू फाइंड V2 डिवाइड बाय I1 एंड V2 डिवाइड बाय V1। दो आपको फाइंड आउट करें। वेल वी कैन फाइंड इवन मोर थिंग्स, देयर मोर आर पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर। तो V2 इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्म आउटपुट पोर्ट, और I1 जो है वो इनपुट पोर्ट पे जो करंट है। इससे ये मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर इम्पिडेंस। ओके, ये G1 नहीं Z12 बनेगा, Z12। और दूसरी जो V2 और V1 है ये वोल्टेज ट्रांसफर रेशो है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। और V2 इज द ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज, V1 जो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है। अप्लाई तो फिलहाल एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे सर इसका बोलो। सर्किट दिखा देंगे। अच्छा, सर्किट वही वाला अभी ऊपर नजर आ रहा है, वही आ रहा है। ये सर्किट, इसमें आसान सब चीज़ें हैं। ये लास्ट टाइम मैंने उस ये वाली एग्जांपल बड़े अच्छे से की हुई है आपके पास, शायद आप लोगों ने डाउनलोड की होगी विद कमेंट्स। अगर नहीं किए ना तो वो जो हमने कंबाइंड क्लास ली थी वहाँ से मिल जाएगी। तो पहली एग्जांपल में तो सिर्फ इसने Z11 फाइंड आउट किया है, ठीक है जी। इसको ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस समझ लें, ये वन पोर्ट के लिहाज से। तो Z11 फाइंड आउट किया है। और दूसरी एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर अब हम देख रहे हैं 8, उसमें इसने ये ट्रांसफ़र जो है ना ट्रांसफर फंक्शंस वो होते हैं जिसमें दो पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो V2 ओवर I1 और V2 ओवर V1, तो जब इनके लिए ट्रांसफ़र फंक्शंस के लिए उसने कहा है कि स्टार्ट एट द आउटपुट पोर्ट एंड देन वर्क टुवर्ड्स द इनपुट पोर्ट सक्सेसफुली अप्लाइंग द KCL एंड KVL। ये इसने टेक्निक बताई है, ये इधर ये लिखा हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है सारी टेक्निक जो उसको करने की है। बस ये पुरानी किताब का ये मसला है ना, इसमें से काम की किताब चीज़ जो है ना वो ढूंढनी पड़ती है कि इसने कहाँ लिखी है। खैर, पुराने बाबों के साथ हमारी लड़ाई नहीं भाई। अब यहाँ पर जैसे ये ऐसे दोनों चीज़ें साथ होती तो अच्छा होता, ठीक है ना। ये हमारी क्वेश्चन और ये फिगर साथ होती, लेकिन मुझे भी कुछ तरीका समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें कि फिगर भी हमारे पास हो और इक्वेशन भी सामने इकट्ठे हों। चलिए मैं यहाँ से, हमारे पास बुक है, वहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ पर ना ये इसने आप ये देखिए जो नोड है, ये वाली नोड, सेंट्रल नोड,
इससे करंट जो फ्लो कर रहा है इस Z3 की तरफ, इट हैज़ बीन नेम्ड एज I सबस्क्रिप्ट B। ठीक है जी। तो जो कन्वेंशनल हमारे पास होती हैं पोर्ट के लिहाज से V2 और I2 जो होती है, I2 जो है ये करंट फ्रॉम द पोर्ट टू एंटरिंग इनटू द पोर्ट। क्योंकि ये ओपन सर्किट हम फिलहाल हमने कहा हुआ है, इसलिए I2 ज़ीरो है। तो अब ये जो IB है यहाँ से जो फ्लो कर रहा है इस नोड से थ्रू Z3, यही IB फ्लो कर रहा है इस Y4 यानी इस आउटपुट में जो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो वी कैन राइट इक्वेशन फॉर IB इन टर्म्स ऑफ V2 एंड Y4। ठीक है, यही चीज़ है, ये V2 है ना। सो ये जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इस कैपेसिटर से, दैट करंट इज ऑल्सो इक्वल टू IB। सेम करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज गोइंग हेयर इन I2 ज़ीरो होने की वजह से। सो ये करंट किसके बराबर होगा, Y4 टाइम्स V2। Y4 टाइम्स V2, करंट इज इक्वल टू एडमिटेंस इनटू वोल्टेज। तो Y4 टाइम्स V2, अब ये Y4 किसके बराबर है, इसका जो Y4 है वो S के बराबर है। तो S टाइम्स V2, ये आप अगर आपने नीचे क्वेश्चन देखेंगे 1028 है, 1028 में वापस लेकर यहाँ आता हूँ, ये IB इज इक्वल टू Y4 टाइम्स Y2 विच इज इक्वल टू SV2। Y4 जो है वो कैपेसिटर की इम्पिडेंस सॉरी एडमिटेंस है विच इज इक्वल टू जस्ट S, क्योंकि C की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 ओवर CS इज इम्पिडेंस, उसका रेसिप्रोकल CS इज द एडमिटेंस, C 1 के बराबर है तो वो S के बराबर हो गया। तो S टाइम्स V2 बिकम्स IB। ठीक है जी, ये हमने क्या अप्लाई किया है, KCL। अच्छा, अब अगले हम क्या कर रहे हैं, अब आगे हमारे पास क्या होगा, VA क्या चीज़ है। वैसे अब यहाँ पर इसने ये जो आपके पास कैपेसिटर है जो Y2 जिसकी एडमिटेंस शो हो रही है, इसके क्रॉस वोल्टेज का नाम इसने दिया है VA। ठीक है जी, ये VA जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ये जो अक्रॉस Z3 प्लस दिस V2। ठीक, जो कि हमने इसका मतलब क्या हुआ, KVL अप्लाई कर दिया हमने, KVL यही कहता है। सो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस Z3, दैट शुड बी इक्वल टू IB इंटू Z3, यही होना चाहिए, करंट इंटू इम्पिडेंस बिकम्स द वोल्टेज। और ये है, ये वोल्टेज है ये V2 के बराबर है, हम ऑलरेडी इसको हमने V2 के नाम से हम जानते हैं। तो दिस VA बिकम्स इक्वल टू IB इंटू Z3 प्लस V2। अच्छा, अभी हमने IB की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की थी जो कि SV2 के बराबर है। ठीक है जी, यहाँ अब आप वापस नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1029 पे, अगली क्वेश्चन ये देखें, VA इक्वल टू V2 प्लस IB इंटू Z3। ये हमने क्या किया, KVL अप्लाई कर दिया। V2 तो एज इट इज हमने लिख दिया और आगे IB की वैल्यू है SV2 और Z3 किस बराबर है, Z3 खुद S के बराबर था क्योंकि 1 हेनरी है। इम्पिडेंस जो होती है आपके इंडक्टेंस की वो LS के बराबर होती है, L1 के बराबर है, तो वो S के बराबर होगी Z3। तो Z3 की वैल्यू S के बराबर, IB की वैल्यू SV2, तो S स्क्वायर V2 हो गया, IB Z3 बिकम्स S स्क्वायर V2। और ये खाली V2 है, ये जो पहले से है, तो इन दोनों टर्म्स में से V2 कॉमन हो गया, दैट्स हियर, so we get S square plus 1 inside this bracket and then we have V2. तो first we have applied KCL, then we have applied KVL and again then we will applied KCL। ठीक है, ये भी हम ये बात समझने की लैडर नेटवर्क के अंदर आपने ट्रांसफ़र फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो आपने KVL KCL KVL KVL और स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है जी, अब ये जो तीसरी क्वेश्चन है I1 इज इक्वल टू IB प्लस Y2 VA, ये आपने क्या किया, ये आपने KCL अप्लाई किया है। ठीक है जी, जो नोड नज़र आई थी मैंने अभी आपको फिगर, I1 जो है वो तो पोर्ट 1 से करंट इंटर हो रही है, IB वो करंट थी जो जा रही थी आउटपुट की तरफ, और जो कैपेसिटर बीच में शंट कैपेसिटर Y2 है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है Y2 टाइम्स VA। ठीक है जी, करंट जो होती है V ओवर
जी यानी वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पेडेंस होती है, या वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एडमिटेंस होती है। उसकी जो एडमिटेंस है Y2 के बराबर है, वो कैपेसिटर है, ठीक है जी, S के बराबर होगी। अब IB की वैल्यू SV2, VA की वैल्यू S स्क्वायर प्लस 1 इंटू V2, और VA के साथ ये Y2 मल्टीप्लाई के जो S के बराबर ये S आ गया, ठीक है। V2 कॉमन ले लिया। तो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो असल बेसिकली इसी में इस्तेमाल होकर सिंप्लीफाइड होती जा रही। उसके बाद हमने KCL किया था, फिर दोबारा KVL आ गया। KVL जो पहला लूप है, इनपुट वाला लूप, उसमें अप्लाइड वोल्टेज V1 है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VA है, और जो एक सीरीज में है आपका क्या नाम है, इम्पिडेंस है, इंडक्टेंस, उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो Z1 इंटू I1 है। दोबारा यहाँ देख लेते हैं ऊपर जाकर, ठीक है। ये दिस V1 इक्वल टू दिस Z1 इंटू I1 प्लस VA, ठीक है। ये इस लूप के अंदर अगर आप KVL अप्लाई करें, दैट्स द थिंग जो हम इक्वेशन नंबर 1030 में देख रहे हैं, नहीं आगे 1031, सॉरी। तो दैट्स इक्वेशन 1031। और फिर उसमें हम ऊपर वाली इक्वेशंस हैं, वहाँ से उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ला के उसको हम लिख लेंगे। तो अब हमारे पास पहले ये कुछ इक्वेशंस हमें मिल गई। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, जो हमने फाइंड आउट करने थे ट्रांसफ़र फंक्शन इम्पीडेंसेस या ट्रांसफ़र फंक्शंस मुख्तलिफ किस्म के, उनके लिहाज से देखेंगे कौन सी जो है वो मुनासिब है। V2 ओवर I1, क्वेश्चन 1031 देखें। देखिए इसमें आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में I1 है और राइट हैंड साइड में एस स्क्वायर प्लस 1 और आगे V2 है। V2 और I1 हमें चाहिए। तो ये जो आपके पास फैक्टर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, वो उसको दूसरी तरफ उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, I1 इधर आ जाएगा, तो वी गेट दिस थिंग। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर भी नज़र आ रहा है, S इसके ब्रैकेट अंदर से खोले तो ये S³ बन जाएगा प्लस S, और ये भी S है तो 2S इकट्ठे हो गए, 2S हो गए, तो ये है S³ प्लस 2S। जस्ट सम सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद आपके पास तो V2 और I1 फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमने फाइंड आउट करना था जो दैट वाज बेसिकली वोल्टेज गेन V2 ओवर V1। उसके लिए इक्वेशन 1031 इज गुड, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास V1 है और यहाँ पर आपके पास V2 है, बाकी आपके पास कोफिशिएंट्स और ऐसे, ठीक है जनाब। इसमें से आपने इनको सिंप्लीफाई करके लिख लिया तो इट बिकम V2 और V1 इक्वल 1/4 प्लस 3S स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। तो दैट्स द वे हाउ वी हैंडल द थिंग्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। सो हियर इट कैन से कि आपके जो फाइनल जो वो बताना चाहते हैं कि दिस पैटर्न ऑफ इक्वेशन में रिटन फॉर एनी लैडर नेटवर्क, सो एनी ट्रांसफॉर्मेशन में बी फाउंड बाय रूटीन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। It's easier to make a calculation type described for a number of specific frequencies of interest than it is to derive general equation. In such calculation, it is conventional to assume 1 volt or 1 ampere output and then to compute the numerical value of the required input voltage current. तो ऐसा भी कुछ करते हैं, ठीक है जी ना। वेल अभी हम फिलहाल ये नहीं कर रहे, आगे जब करेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा, since we are interested in a ratio of an output quantity to input quantity, there is nothing lost by using this conventional numerical value for the output, ठीक है जी। We have described is called unit output method, लेकिन ये इसमें बताया लेडर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक, अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो किसी खास काम के लिए जाना है और किसी के लिए नहीं। वेल ये तो क्लास के दौरान जो है ना लोग कोई ना कोई बात छेड़ना चाहते हैं, किसी को मैसेज किया है, चल खैर कम बैक टू वर्क। जनरल नेटवर्क्स, सेकंड कैटेगरी जनरल नेटवर्क्स। तो जनरल नेटवर्क्स के अंदर नॉन लैडर नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और कई किस्म के नॉन लैडर नेटवर्क्स ने यहाँ पर शो किए हुए। और ये देखिए आगे, हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, इसका फिगर 10-12 के अंदर ये फिगर ए जो है, ये 10-12A,
अब इसके अंदर देखिए ये जो अलग से शो किया ना राइट हैंड साइड पे, ये तो इसका होगा समझिए लोड, उसको अलग शो किया हुआ। तो असल हम नेटवर्क इसकी बात कर रहे हैं। तो ये टी है और उसके ऊपर आप देखें, अगर ये टी के ऊपर ये एक समझे पैरेलल पाथ ऐसे दिया हुआ है जो आउटपुट इन पोर्ट 1 को पोर्ट 2 से एक बाईपास समझ लें, ठीक है जी, पैरेलल पाथ उसको दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं ब्रिज्ड टी, ठीक है जी। अब इसका जो एनालिसिस है वो थोड़ा उस लैडर नेटवर्क के तरीके से नहीं हो सकता। अगली देखें बी के अंदर एक टी तो ऑलरेडी मौजूद थी, एक और टी भी है, तो बेसिकली इट इज टी इन पैरेलल विद अनदर टी, तो इसका पैरेलल टी भी कहते हैं। और अगली जो है सी के अंदर आप देखें, ये इस किस्म का पता नहीं आपने वीट्स देखा होगा, आपने देखा होगा, लेटिस नेटवर्क कहलाता है ये, ठीक है जी। इस पोर्ट ये 1 से कनेक्ट कर रहा है 2 डैश से, और 1 जो है वो 2 से भी कनेक्ट हो रहा है, फिर 2 जो है वो 1 डैश से कनेक्ट हो रहा है, और 1 डैश है वो 2 डैश से भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इट मेक्स अ लैटिस, ठीक है जी, इसको लैटिस कहते हैं। वैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे, वहाँ पे कुछ और किस्म के होते थे, वेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते थे, उसी से कुछ इन्होंने शायद किया होगा। अच्छा, लैडर नेटवर्क के अंदर अब क्या करने की जरूरत है, नॉन लैडर में सॉरी, एक्सप्रेस द नेटवर्क फंक्शन एज अ कोशेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर्मुलेटेड ऑन द नोड और लूप बेसिस। तो ये जो हमने चैप्टर 3 का भी कुछ जिक्र किया था, लास्ट चैप्टर में किया था, वो डिटर्मिनेंट्स बनाने पड़ेंगे, या आप डिटर्मिनेंट्स में नहीं जाना चाहते तो आप उनकी क्वेश्चंस लिख लें या फिर वहाँ से उनको सॉल्व करें, थोड़ा मुश्किल होगा। डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी ज़िंदगी थोड़ी मैथमेटिकली आसान हो जाती है, ठीक है जी। तो उस तरह से कर सकते हैं। डेल्टा इज द लूप बेसिस डिटर्मिनेंट एंड वाई इज रिप्लेस्ड बाय वाई इफ द आउटपुट इज शॉर्टेड, देन इन जेड जे के में इम्पिडेंस के केस में क्या होगा, ठीक है जी। तो डेल्टा ये डैश है द नोड बेसिस बेसिस सिस्टम डिटर्मिनेंट the common ground connection between port 1 and 2. The Z is replaced by small z when the output port is open. तो ये थोड़ा सा रही सी बात है, इट इज़ नॉट दैट ईजी, ये तो आपको पहले बता दें। वेल चाहे आप डिटरमिनेंट्स के ज़रिए से करें, चाहे आप इक्वेशन पूरी लिख के लॉन्गर मेथड से कर लें। शुरू में तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो जो पुराना आसान सा मेथड है, आसान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन वो लॉन्ग है, उसमें आपको सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। अगर आप उसी में से आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट्स ऑफ इक्वेशंस को इकट्ठा करके उनकी डिटरमिनेंट्स बना लें तो दैट विल बी बिकम ईजियर। जैसे ये G12 इसने शो किया है, जो क्या था, ट्रांसफ़र वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन है बेसिकली। अब इसके अंदर आप ये देख लें, इसने ये डेल्टा 12 डैश और डेल्टा 11 डैश, ठीक है जी। अब ये डेल्टा जो है ये आपको लिखने के लिए ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो है ये कोफैक्टर, इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से ये अल्फ़ा 12 के अंदर करंट ट्रांसफ़र फंक्शन है ये I2 और I1, डेल्टा 12 डिवाइड बाई डेल्टा 11। तो इसने यहाँ पर ये फिगर 10-13 आगे नीचे दी हुई है, वहाँ पर देखिए लूप बेसिस सिस्टम से इसने करके इसको दिखाया है ये। तो लेट्स ट्राई कि इसमें कुछ हमें समझ में आ जाए, इसको कोशिश करते हैं कि इसने कैसे किया। तो ये ब्रिज टी नेटवर्क है। ब्रिज टी जैसे आपको बताया था 3 किस्म के, उनमें से एक था ब्रिज टी। तो एक टी नेटवर्क है और फिर उसके ऊपर ये ब्रिज बन रहा है, ठीक है जी। और ये आपके पास ये आगे यहाँ पे इसने वो पोर्ट के लिए वो शो नहीं किया, ये जो 1 ओम आखिर में शो हो रहा है ये बेसिकली आप कहने का ये लोड है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, हमने लूप की बात की थी ना इसने, लूप बेसिस में, तो हमने लूप्स डिफाइन करने।
अच्छा, वैसे हम आपको याद होगा कि हम आज अब तक जितने हम लूप्स बनाते थे ना पहले लूप एनालिसिस में या मैश एनालिसिस में, तो हम कहते थे सारे जो डायरेक्शंस ऑफ करंट्स हैं वो सब एक जैसे, सारी काउंटर क्लॉक का सारे क्लॉक का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये तो हम अपनी आसानी सहूलत के लिए रख लेते थे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो टू पोर्ट नेटवर्क्स है या पोर्ट के जो कन्वेंशन है उसमें ये कि जो आपके करंट है वो करंट इज फ्लोइंग इनटू द पोर्ट बेसिकली। तो अगर ये हमारे पास पोर्ट 1 के लिए तो ठीक है, ये वोल्टेज V1 और ये करंट इसमें जो इंटर हो रहा है वो I1, तो उसके लिहाज से हमारे पास जो लूप करंट है वो I1 हम शो कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम ये जो ऊपर वाले ये ब्रिज की वजह से लूप बन रहा है वहाँ पर हम उसको भी करंट से शो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्ट 2 है जो कन्वेंशन है कि वो करंट इनटू द पोर्ट होनी चाहिए। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर एक और अपनी लगाएं फिर उसको कोई और नाम दें, अच्छा ये है कि हम जो लूप करंट है वो इस I2 के लिहाज से शो कर दें। ऑल्दो ये जो I3 और I1 ये क्लॉकवाइज हैं और I2 काउंटर क्लॉकवाइज है, डजेंट मैटर। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो एंट्रीज हैं जो उसने इस मैट्रिक्स में डाली हैं डिटरमिनेंट बेसिकली, वो अब आपको मैं निकाल के बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या किया इसने। पहला लूप 1 को देख लें। ठीक है जी, लूप 1 से आपके पास जो इम्पिडेंसेस आ रही हैं, लूप 1 में आपके पास एक कैपेसिटर है और एक आपके पास वो है रजिस्टर। कैपेसिटर की जो है 1/s, रजिस्टर की 1, तो 1/s + 1। ठीक है जी, और उसके बाद लूप 1 और लूप 2 में जो कॉमन है वो सिर्फ आपके पास एक रजिस्टर है, उसकी 1। अच्छा जी, लूप 1 और लूप 3 के दरमियान जो कॉमन है वो सिर्फ एक कैपेसिटर है और उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है। ठीक है जी, ये जो है ना डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो उसके लिए, इन दोनों के लिए, ये देखें, ये जो कैपेसिटर है जो कॉमन है बिटवीन लूप 1 एंड लूप 3, I1 की डायरेक्शन ये है, I3 की डायरेक्शन अपोजिट नज़र आ रही है ना, तो बेसिकली डायरेक्शन की वजह से वी विल हैव -1/s। अच्छा, उसके बाद आ जाए सेकंड रो पे। ठीक है, सेकंड रो में क्या हुआ, पहले लूप 1 और लूप 2 के दरमियान जो कॉमन है 1, उसके बाद लूप 2 के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी वो उसमें एक कैपेसिटर है और 2 रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, 1/s + 1/2 +2, 1 + 1 2 हो गया। और फिर थर्ड एंट्री है वो लूप 2 और लूप 3 के दरमियान जो कॉमन है वो कैपेसिटर है। ये देखें, थर्ड एंट्री जो आ रही है ना वो ये लूप 2 में और लूप 3 में कॉमन ये कैपेसिटर है। अच्छा, इन दोनों में देखें I2 की डायरेक्शन और I3 की डायरेक्शन दोनों मैच कर रही है। ठीक है जनाब, इसलिए इसके जो साइन है वो पॉजिटिव साइन आया। अब इसमें आ जाए थर्ड रो के अंदर, थर्ड रो में आ जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लूप 1 और लूप 3, अब ये थर्ड रो जो बेसिकली लूप 3 के लिहाज से लिखी जा रही है, तो लूप 1 और लूप 3 में जो कॉमन है वो ये वाला, और माइनस साइन इसलिए था कि दोनों डायरेक्शन करंट के फ़र्क है। और ये सेकेंड एंट्री लूप 3 और लूप 2 में जो कॉमन है वो ये कैपेसिटर है, और चूँकि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ। और थर्ड एंट्री जो है वो लूप 3 की अपनी जो इम्पिडेंस है सारी, उसमें क्या है जनाब, 1/s और 1/s, दो कैपेसिटर, 1/s + 1/s बिकम्स 2/s और एक रजिस्टर +1। ठीक है जी, ये होगी आपकी बेसिकली मेन डेल्टा कह लें।
एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट एंड द अप्रोप्रिएट फॉर फैक्टर। अच्छा, ये तो हम इसको अब एक्सपेंशन अब यहाँ पर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। और किस को इस्तेमाल करते हुए करें, क्योंकि सारी जो है नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, कोई नॉन ज़ीरो उसमें ज़ीरो वाली कोई नहीं है। वरना डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए आसान ये होता है कि उस रो या कॉलम को इस्तेमाल करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों। तो इसमें कोई भी नहीं है, तो किसी भी रो से आप कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा है वो है जो आपके आएगा किसमें, डिनोमिनेटर के अंदर। अच्छा जनाब, डेल्टा 1 1 में क्या होगा जनाब? डेल्टा 1 1 में रो 1 और कॉलम 1 को हम छोड़ देंगे और बाकी जो कुछ होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आई एम अफ्रेड कि मुझे लग नहीं रहा कि इसकी जो डिनोमिनेटर है वो उसने सही किया है कि नहीं। लिखा तो उसने s² + 5s + 2 लिखा हुआ है, मे बी, मैंने भी इसको खुद से किया नहीं। पहले चेक कर लें कि इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं इसको पहले, तो ये s² + 5s + 2 आता है कि नहीं। अच्छा, डेल्टा 1 1 के अंदर क्या किया, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी इसको कर लें, तो ये क्या बनना चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, और इससे आपको y11 मिल गया। और मज़ीद आगे चले, इसने एक और भी फाइंड आउट किया है, ये y12 जो डेल्टा 21 और डेल्टा के बराबर है। अच्छा, दैट इज हैविंग अ नेगेटिव साइन when output port 2 of the network of figure 1013 is shorted, the network reduces the latter form। अच्छा चलिए, ये तो इसने इरादा से किया कि अगर आप इसकी जो इसकी आउटपुट को शॉर्ट कर दें तो इन दैट केस ये जो है एक बन जाएगा लैडर नेटवर्क। अच्छा जनाब, अभी जो चैप्टर के हेडिंग के अंदर जो चैप्टर का नाम पड़ा था ना, नेटवर्क फंक्शंस पोल्स एंड जीरोस, इसमें अब जो अगली बात आ रही है वो पोल्स एंड जीरोस की। नेटवर्क फंक्शंस थे, अब हम एक और नई कैटेगरी पढ़ने लगेंगे जिसका नाम है पोल्स एंड जीरोस। थोड़ा सा हमने पहले नाम उसका सुना हुआ है आपने, क्योंकि आपने एस प्लेन आपने पढ़ा हुआ है, एस प्लेन के अंदर आपने पोल्स और जीरोस पढ़े हुए हैं। बेसिकली अब उन पोल्स और जीरोस के साथ हम नेटवर्क फंक्शन के साथ इनको लिंक कर लेंगे। थोड़ा सा इसका भी आपको आइडिया है ऑलरेडी, इसलिए ये बहुत नई बात भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये कहना नई तो नहीं है, लेकिन ये कहें कि बहुत ही आसान है वो भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये दोबारा वो बात उसने पुरानी दोहरा दी कि जो हमने क्या पढ़ा था कि सारे नेटवर्क फंक्शंस जो हैं वो कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एस है, ये फॉर्म हमने पहले भी देखी थी। ठीक है जी, ये जो a0 a1 अप से अप टू an है और b0 b1 अप टू bm है, ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं और ये रियल होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स हों, पैसिव एलिमेंट्स एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हैं। ठीक है जी, कंट्रोल सोर्सेज ना हो, ये भी है। और अब ये जो इक्वेशन है, यानी क्या करते हैं हम, पोल्स और जीरो कैसे निकालते हैं। जीरोस के लिए हम क्या करते थे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करें, उसके रूट्स फाइंड आउट करें, वो जीरोस कहलाते हैं। और पोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करें, फिर उसको सॉल्व करें, यानी उसके रूट्स फाइंड आउट करें, तो वो क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। ये इसने बात लिखी। इक्वेशन ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है PS इक्वल टू जीरो हैज़, उसमें रूट्स कितने होंगे, ये इसकी पावर मैक्सिमम पावर जो उसकी है एक्सपोनेंट है वो n है, तो इसमें n रूट्स होंगे। और इसी तरह से नीचे वाला जो है QS इसका नाम दिया हुआ है, इसको जीरो करके इसके रूट्स फाइंड करो, तो इसमें रूट्स की तादाद कितनी की m रूट्स होंगे। अच्छा, अब ये दोनों जो पॉलिनोमियल है PS और QS, इसको हम इनके रूट्स की मदद से फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ऊपर वाले जो फैक्टर रूट्स हैं वो जीरोस कहलाते हैं, वो Z1 Z2 अप टू Zn, n तादाद बताई थी। और नीचे वाले वो पोल्स कहलाते हैं, P1 P2 अप टू Pm।
तो अगर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना हो जो रूट्स की मदद में, तो हम इस तरह लेते हैं S-Z1 S-Z2 अप टू S-Zn, और नीचे जो है S-P1 S-P2। तो अब ये जो आपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ था नेटवर्क फंक्शन को, उसको हम फैक्टर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर फैक्टर फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये जो आपका A0 और B0 है, ठीक है, बेसिकली ये इनको हम इनसे हमारी जान छूट जाती है, हम ये दे आर आउट ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है जी। और इनका जो रेशियो होती है डेट इज सम कांस्टेंट, इसमें एच का नाम दिया है, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अगर अभी किसी को कुछ अजीब लग रहा हो तो भाई खुद से आप एक अपना बना लें, और आसान ही है कि कोई ऐसा नेटवर्क फंक्शन बनाएं जिसके 2 पोल्स और 2 ज़ीरोज़ हों। ठीक है जी। और उनको इस फॉर्म में लिखें, और या इस फॉर्म से लिखकर फिर वापस इस फॉर्म में ले आएं, जैसे आपको आसान लगे। मुझे तो ये आसान लगता है कि 2 ज़ीरोज़ और 2 पोल्स वाला हो, यहाँ से वो यहाँ पर हम लेंगे। अच्छा अच्छा, ये जो Z1 से लेकर Z1n तक ये जो ज़ीरोज़ और पोल्स हैं, इनको कंबाइंड या कलेक्टिवली वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज एज वेल। अच्छा, जब आपका जो वेरिएबल s है, सिस्टम का वेरिएबल s, उसकी वैल्यू किसी भी z के बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो देखें ना, अगर s Z1 के बराबर हो जाए तो ये 0 हो गया, तो पूरे का पूरा आपका नेटवर्क फंक्शन 0 हो गया। ठीक है, यानी s Z2 के बराबर हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। तो s जो है उसकी वैल्यू किसी भी Z1 Z2 Zn के बराबर हो जाए तो आपका नेटवर्क फंक्शन 0 हो जाएगा, जिसको उसने कहा नेटवर्क फंक्शन वैनिशेस। ठीक है, तो इसलिए ये वजह भी है कि इसको हम इन फ्रिक्वेंसीज को ज़ीरोज़ कहते हैं, क्योंकि जब वो आप s की वैल्यू ये डालते हैं तो आपका जो फंक्शन है ये, ठीक है जी, ns या नेटवर्क फंक्शन, वो 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, s की वैल्यू p1 के बराबर कर दें तो क्या होगा, p1 माइनस p1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वो 0 तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो पोल्स वो वैल्यूज़ होती हैं, सच कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसीज हैं कि अगर आप कि वो उस पर ऑपरेट करते हैं या वहाँ लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, नेटवर्क फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है जी, इस वजह से इनको पोल्स कहते हैं। इनफाइनाइट का कोई इनको जो क्या कहना चाहिए उसके लिए, उन्होंने जिसने भी लफ्ज़ सोचा पोल सोच लिया, कोई उसको 0 की तरह 0 समझ में नहीं आया, या इनफाइनाइट कहना अच्छा ही लगा। तो ये फैक्टर्स s माइनस जेड और 0 फैक्टर्स कहलाते हैं। ये जो है ये सारे ऊपर जो है ये 0 फैक्टर्स हैं, और ये s माइनस P1 s माइनस P2 s माइनस P, जब तक ये सारे पोल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो पोल्स एंड जीरोस जो है ये आर आल्सो यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द नेटवर्क फंक्शंस, और हम ये जो नेटवर्क फंक्शन को इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे, दे आर गुड एनफ। तो पोल जीरोस की मदद से हम स्केल फैक्टर, पोल, जीरोस और स्केल फैक्टर, ये 3 चीज़ें जो हैं ये बेसिकली उसके इक्वलेंट ही हैं जो हमने ये 1040 के अंदर देखा था, जो आपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ था। तो यानी इसकी आप ये अल्टरनेटिव फॉर्म कह सकते हैं नेटवर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की। और इसमें हमें फ़ायदा क्या है पोल जीरोस वाले का, कि ये हम बेसिकली आप एस प्लेन के ऊपर प्लॉट करके शो कर सकते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही। यहाँ 1040 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो सिर्फ नंबर्स को समझना जो है ना, और अंडरस्टैंड करना, और उससे आगे मज़ीद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम प्लॉट कर लेते हैं पोल जीरोस को, तो वहाँ पर हमारे लिए उसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करना बिकम्स ईजियर। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आगे हम कोर्स पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम्स, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके एनालिसिस के लिए भी और फिर फर्दर उसके डिज़ाइन के लिए भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब पोल्स और जीरो मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीपल पोल्स और जीरोस, ऐसा हो सकता है ना कि कुछ जीरोस और पोल्स मल्टीपल हो तो उनको मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, मल्टीप्लिसिटी आर। ठीक है जी। अच्छा, इफ पोल और जीरो इज नॉट रिपीटेड देन इट इज सेड टू बी सिंपल और डिस्टिंक्ट। ठीक है जी।
तो रिपीटेड पोल के लिए या पोल्स हैविंग या जीरोज हैविंग मल्टीप्लिसिटी या रिपीटेड पोल्स रिपीटेड जीरोज के कह देते हैं। ज़्यादातर हम रिपीटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल ज़बान में ना वो मल्टीप्लिसिटी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, अगर पोल और जीरोज जो हैं, ये बेटा कुछ पूछ रहे हो? हेलो, बोले। अच्छा, अगर जो आपके आपका मेरे ख्याल में माइक ठीक नहीं है। आप टेक्स्ट कर दिएगा या मैसेज कर दिएगा बाद में, ठीक है? वो माइक साइड नहीं है आपका, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, अगर पोल्स और जीरोज जो है ना वो इन्फिनिटी पे भी हो सकते हैं, एस प्लेन पे, और इन्फिनिटी पे हो सकते हैं, और उनको भी हमको डिग्री असाइन कर सकते हैं। बेटे आपके जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपका कोई माइक में लगता है प्रॉब्लम है, हमें आवाज़ नहीं आ रही, तो आप काइंडली इसको ठीक करके फिर बात कर लें, या मुझे बाद में मेल कर दें या मैसेज कर दें, ठीक है? अगर आपके जो नोमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री में फ़र्क होगा, ये देखिए n है नोमिनेटर की डिग्री और m है आपके डिनोमिनेटर की, इसका इन दोनों के दरमियान फ़र्क शो हो रहा है। किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज़ उसको ऑफ कर दें। अगर तो पोलिनोमियल जो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों की डिग्री एक जैसी हो, फिर तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है? वो सारे पोल्स और जीरोज आपके सामने प्लॉट हो जाते हैं। लेकिन जब वो उनकी डिग्री बराबर नहीं होती, फिर हम असल में अज्यूम ये करते हैं कि किसी भी नेटवर्क फंक्शन के लिए पोल और जीरो की तादाद बराबर होगी। बेसिकली ये आइडिया है। अगर आपके पास फाइनाइट पोल्स फाइनाइट जीरोज के बराबर नहीं है, तो अगर पोल्स ज़्यादा है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि ज़ीरोज़ जो हैं वो उतने ज़ीरोज़ जो हैं वो आपके कहीं इन्फिनिटी पे होंगे, और ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं तो पोल्स के लिए करेंगे, ठीक है? अभी हम यहाँ आपको तो वो उसका ये कह रहे थे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि द पोल एट इन्फिनिटी ऑफ द डिग्री और मल्टीप्लिसिटी n माइनस m, ठीक है जी? और n लेस देन m है तो ज़ीरोज़ एट इन्फिनिटी। बेसिकली इसने एक ही ज़ीरो या पोल लिखा हुआ है, हम बस ये कहते नहीं है कि एक ही ज़ीरो पोल हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वेल, if for any national network function poles and zeros at 0 and infinity are taken into account in addition to finite poles and zeros, the total number of zeros equal to the total number of poles. Basically ये है आइडिया, ठीक है जी? बज़ाहिर तो आपको जो नेटवर्क फंक्शन है ज़रूरी नहीं कि उसमें वो बराबर हों, लेकिन आप ये अज्यूम करेंगे कि अगर वो पॉलिनोमियल्स की डिग्री बराबर नहीं है, तब भी आपके पास कुछ पोल्स या ज़ीरोज़ इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जिनकी वजह से नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज विल बी बैलेंस्ड। एक नेटवर्क फंक्शन इसने ये दिया है ऑलरेडी, वैसे ये बैलेंस्ड ही है। इसमें आप नोमिनेटर में देखें तो ये 3 इसके बन रहे हैं ज़ीरोज़, और पोल्स हैं इसके 3 बन रहे हैं, ठीक है जी? ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? नोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर दें तो ये s², ठीक है? इसका मतलब है कि आपके पास ओरिजिन पे 2 ज़ीरोज़ हैं और s = -3 सॉरी, ये आगे फिगर में नज़र आ रहा है आपको। ये 2 ज़ीरोज़ हैं जो ओरिजिन पे हैं और एक ज़ीरो -3 पर है, ठीक है जी? अच्छा, उसके अलावा जो नीचे देखें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे आपको पता लग रहा है कि इसमें अगर इसको 0 पुट करें, फैक्टर्स हैं s+1, s = -1 के ऊपर एक पोल है, और ये 2 पोल्स हैं जो कंजुगेट हैं, और वो कम्प्लेक्स कंजुगेट हैं -2 ± j1 पे, ठीक है जी? ये देखें, ये
दो पोल्स ही हैं जो कम्प्लेक्स कंजुगेट हैं। तो बेसिकली वी हैव गॉट 3 जीरोज एंड 3 पोल्स, तो ये सारे के सारे फाइनाइट हैं। तो यहाँ पर हम ये एजम्पशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई ज़ीरो या पोल जो है वो इन्फिनिटी पर हो। अच्छा, अब उसने वैसे आगे क्या कहना चाहिए, एज्यूम्शन कर ली कि अगर ये फैक्टर s+1 जो था ये इस पर स्क्वायर होता, ठीक है जी, स्क्वायर होता तो क्या होता, हमारे पास यहाँ पर दो पोल्स हो जाते, ठीक है जी। तो फिर पोल और जीरो की तादाद जो है वो बराबर ना रहती। तो फिर हम ये एज्यूम करते कि जी चूँकि हमारे पास अब 4 पोल्स हो गए हैं, जीरो 3 है, तो एक चौथा जीरो भी कहीं होना चाहिए। वो कहाँ होगा जी, लेट्स एज्यूम कि वो इन्फिनिटी पर है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। इस सारी कहानी का मकसद ये है। अरे ये सिंबल तो हमें पहले से पता है, ज़ीरो के लिए हम ओ छोटा सा ये इस्तेमाल करते हैं, पोल के लिए एक्स का साइन इस्तेमाल होता है। पोल से जीरोस क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज या कम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसीज, बेसिकली क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज हैं ज़्यादा ये, ठीक है जी। पोल्स के ऊपर क्या होगा, नेटवर्क, ये पहले भी आ चुका है रिपीटिशन ये। पोल्स के ऊपर नेटवर्क फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, जीरोस के ऊपर नेटवर्क फंक्शन जीरो एट अदर कम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसीज। तो बहुत और भी बहुत सारी हैं जो इनके अलावा भी हैं। तो उसमें नेटवर्क फंक्शन विल हैव सम फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू। और ये अगली फिगर जो है ना, वहाँ पर उसने 3 डायमेंशनल समझिए स्लाइस कट करके शो किया आपको। ये देखें, ये उसने एक क्वाड्रेंट जो है ना शो किया। ये एस प्लेन के अंदर ये क्या होता है, ये सिग्मा होता है एक, और एक ओमेगा एक्सिस होता है ना। तो एक क्वाड्रेंट को उसने शो किया है जहाँ पर ये आपके पास वो दो पोल्स और एक ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है जी। दो पोल्स और एक ज़ीरो कहाँ पे शो हो रहे हैं, पूरा एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट शो किए हैं बेसिकली। दो पोल्स हैं और एक ज़ीरो है। और मैग्नीट्यूड शो किया इसने, ठीक है जी। वेल हम ये इस्तेमाल करते नहीं है 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में चलते हैं, और ये इस तरह हम शो नहीं करते। जो जिस पॉइंट पे हमें चाहिए होता है वो कर सकते, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इस तरह करना चाहें तो इसके लिए जाहिर सी बात है, आप मैटलैब में आप बड़ा लंबा चौड़ा आपको उसके लिए करना पड़ेगा। लंबा चौड़ा तो नहीं, थोड़ा सा वो 3 डायमेंशनल प्लॉट जो है वो ख्याल है वो प्लॉट कर सकते हैं आप उसमें। वेल उसके इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ वैल्यूज़। द पोर्शन ऑफ द प्लेन शोन इन फिगर 10-15 अच्छा ये कोई और था भाई, वो वाला प्लॉट था ही नहीं, ये इसने शो किया है ये वाला, ठीक है जी। कोई आपके पास नेटवर्क फंक्शन है, उसने ये पोर्शन शो किया है जिसमें आपके पास ये दो पोल्स और एक साइड पे एक ज़ीरो था। ये उसने उसको शो करने की कोशिश, ये शो किया था जो पोर्शन उसने 3 डायमेंशनल प्लॉट आपको शो किया हुआ है। अब ये नेटवर्क फंक्शन है कौन सा वो भी हमने शो नहीं किया हुआ। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 4 पोल्स हैं, फाइनाइट ज़ीरो एक ही है। तो उसने कहा जी आपके पास 3 ज़ीरोज़ जो होंगे वो इन्फिनिटी पर हों, ठीक है। उसने ज़ीरोज़ ऑफ डिग्री 3 का नाम दे दिया। वेल इसने एक डायरेक्शन शो की हुई है, ये हम बाद में ना नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि ये जो पोल्स या ज़ीरोज़ जो आपके इन्फिनिटी पर होते हैं उनकी डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये भी एक काम है। वेल इस सेमेस्टर में वो हम नहीं करेंगे फ़िलहाल, कोशिश करेंगे ना करें, हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, पोल रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी एट द नेटवर्क फंक्शन ब्लोज अप। वेल ये बात वही दोबारा उसने इनफाइनाइट हो जाना, ये ब्लो अप हो जाना एक ही बात है। और उस पर ज़ीरो पे बिहेवियर वैनिश को उसने बिकमिंग नथिंग, और उसको लगता है ये लफ्ज़ को ज़्यादा पसंद है बार बार को। अच्छा जनाब, तो बाकी इसने तारीफ़ की है जनाब हमने कि जी हम पोल ज़ीरो से बड़ा फ़ायदा। यस इट इज़ ट्रू कि पोल ज़ीरोज़ की मदद से हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी मे लर्न फ्रॉम पोल ज़ीरो प्लॉट, यहाँ से उसने कुछ हमें बताने की कोशिश की है जो कि हमें नो, हम पता है कि वी
आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज एस डोमेन में क्या होती है, हमने इसको वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन का नाम दिया था जिसको G12 से शो करते हैं। तो वी आउट कैन बी ऑल्सो क्या होगी, वी इन को यहाँ ले जाए मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अगर आपने क्या होगा, वी इन आपको नोन होता है, G12 आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, आपने वी आउट निकालना होता है, रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। ठीक है नी, यानी आपके पास नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आप नेटवर्क से फाइंड आउट कर लेते हैं, वी इन आप खुद से अप्लाई करते हैं, इन दोनों की मदद से हम वी आउट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी एस डोमेन में थे ना, तो देन हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है फाइनली टाइम डोमेन में। उसके लिए हम क्या करते हैं, एस डोमेन से टाइम डोमेन लाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता था, एक्सपेंशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, और ऐसी फॉर्म में लेकर आते हैं जो कि जिनके लिए आसानी से हम कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शंस फाइंड आउट कर सकें। ये प्रैक्टिस भी हमने पिछले 1-2 चैप्टर्स के अंदर की थी। तो जो डिनोमिनेटर होते हैं हर पार्शियल फ्रैक्शन के, डिनोमिनेटर से क्या होता है, हमें पोल मिलता है। बेसिकली वो पोल होता है, या तो वो पोल इस सिस्टम का पोल होता है या इनपुट का पोल होता है। ठीक है ना, तो जब हम इसने इस जी, ये जो है ना वी आउट जो G12 इंटू एस इंटू वी इन एस है, बेसिकली जब हम इसको अगर अभी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, सम कांस्टेंट डिवाइड बाय एस माइनस पोल 1 प्लस कांस्टेंट K2 डिवाइड बाय एस माइनस पोल 2, कांस्टेंट K प्लस कांस्टेंट K3 डिवाइड बाय एस माइनस पोल 3, इसी तरह से। तो ये उसने शो किया है, उसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है या सेग्रीगेट करने की कोशिश की है कि आप जो सिस्टम के पोल्स हैं उनको अलग कर लें और जो इनपुट के पोल्स हैं उनको अलग कर लें। ठीक है जी, ये जो है ना, ये G12 के जो पोल्स हैं उसने कहा जी उनकी तादाद U के बराबर है। ठीक है जी, तो ये आपके आगे सिस्टम के पोल्स। ठीक है जी, वो नहीं, आपके पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो फैक्टर्स हैं जिस जो विच आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द या डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम पोल्स। अच्छा, दूसरा जो है वो आपके पास ये जो इनपुट है वोल्टेज, उसके भी पोल्स हो सकते हैं। ठीक है जी, उनके लिहाज से ये उसकी तादाद, उसने कहा जी उनकी तादाद वी के बराबर है। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वी इन वाले पोल होंगे, ये वी इन वाले ये पोल हैं। ठीक है जी, और G12 वाले ये पोल, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन है, लेकिन उनके जो डिनोमिनेटर हैं उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो उन पोल से लिखे गए। जब हम इसके बाद इनको फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्म में, अभी हमने ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, इन सब से हमें मिलेंगे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, अगर ये हम सिंपल हमने पोल्स की बात की हुई है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएंगे इस फॉर्म के, के जे जो है ये तो कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स, और ये 1 ओवर एस माइनस पी जे, इसका जब हम इनवर्स लैप्लास लेंगे तो ई रेज़ पावर पी जे टी। ठीक है, यहाँ पर इसका ई रेज़ पावर पी के टी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मिलेंगे। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जो रिस्पांस है ये क्या हो, कैसा होना चाहिए, हम फाइनाइट रिस्पांस चाहते हैं ना। अच्छा चलें, यहाँ से फाइनाइट की हम बात कर लेते हैं। द फ्रीक्वेंसीज एस जे आर द नेचुरल कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्री ऑसिलेशंस। ये एस जे है, ये तस्वीर भी थोड़ी सी याद मुझसे, एस जे ही लिखा हुआ है गालबन, हाँ जे ही लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है और ये के लिखा हुआ है। वो कहना ये चाहता है कि यहाँ पर असल में 2 किस्म की फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, वो एस जे जो आपके सिस्टम के साथ एसोसिएटेड थी उनको नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्री ऑसिलेशंस। ओके, और जो फ्रीक्वेंसीज एस के हैं उनका ताल्लुक है वो ड्राइविंग फोर्स कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो नेचुरल कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज वो हैं जो सिस्टम की अपनी है, जो उसके जो ट्रांसफर फंक्शन है G12 उससे रेलेवेंट है, और जो एस के फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपकी जो वी इनपुट है वो उस वहाँ से आई है, तो उनको ड्राइविंग फोर्स
कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसीज भी कह सकते हैं। यानी आप भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन दो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को अलग आइडेंटिफाई कर लिया है और दे कॉज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है जी, इस सब फोर्स रिस्पॉन्स कह लें। फोर्स रिस्पॉन्स होता है वो इनपुट की वजह से होता है, और उसके अलावा जो रिस्पॉन्स होता है वो नेचुरल रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, वो फ्री, ठीक है जी, यानी इनपुट फ्री रिस्पॉन्स, उसको फ्री ऑसिलेशंस का नाम उसने दिया हुआ है। The poles therefore determine the waveform, the time variation of the response, the output voltage. The zeros determine the magnitude of the each part of the response. They determine the magnitude of k. तो poles क्या करेंगे, waveforms को करेंगे, ठीक है जी, और zeros उसकी magnitudes को करेंगे। और ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंसेस में क्या होता है, पोल्स एंड जीरोस हैव इजीली विजुअलाइज मीनिंग्स। ठीक है जी, इमिटेंसेस के अंदर हम इम्पिडेंस और एडमिटेंस दोनों को लेते हैं। यहाँ पे इसने इम्पिडेंस की बात की है, जेड एस इजकल टू वी एस बाई आई एस। अ पोल ऑफ जी एस इम्प्लाइज जीरो करंट फॉर फाइनाइट वोल्टेज। तो अगर हम पोल क्या होता है, एस की वो वैल्यू जिस पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, नहीं आई जीरो हो, ये कहना चाहता हूँ। पोल ऑफ जी, पोल ऑफ जो इम्पिडेंस है, इम्प्लाइज जीरो करंट फॉर अ फाइनाइट वोल्टेज। बात समझ में आई, यानी वी जो है उसकी वैल्यू फाइनाइट हो, कोई प्लस माइनस वैल्यू है लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन ज़ीरो जो है वो, जो आपका करंट है वो ज़ीरो हो, तो एनीथिंग फाइनाइट डिवाइड बाय ज़ीरो विल गिव अस इन्फिनिटी। तो वो क्या हो गया, पोल हो गया, विच मीन्स एन ओपन सर्किट। अच्छा जी, ये बात समझ में आई कुछ? है थोड़ी सी टेढ़ी कहानी लगती है बज़ाहिर, लेकिन बहुत आसान है, सिंपल। जी आपके पास इम्पिडेंस है, ठीक है जी। इम्पिडेंस हमने, वी नो दैट इम्पिडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। और जब हम पोल किसी, इम्पिडेंस है वो खुद एक नेटवर्क फंक्शन है। पोल क्या होता है, किसी भी नेटवर्क फंक्शन का जिस पर वो जिस पर वो जो नेटवर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। तो z की वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, जब आई जीरो हो जाए, तो आई डिनोमीटर में है। आई जीरो का मतलब क्या है, क्या करंट कैसे जीरो हो सकता है, कि आप उसके सर्किट को ओपन कर दें, ठीक है ना, वोल्टेज फाइनाइट हो और आपने सर्किट को ओपन कर दिया है तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। तो उस वक्त जो आपकी इम्पिडेंस होगी वो ओपन सर्किट, वो क्या लगेगा, उसके लिए कह देंगे वो पोल है आपका इम्पिडेंस का, ठीक है जी। अ पोल ऑफ ZS implies zero current for a finite voltage, which means an open circuit. इसे जीरो क्या मकसद है, कि जीरो कब हो सकता है, ZS का जीरो कब होगा, अगर आप I को फाइनाइट रखें और V को जीरो कर दें। V जीरो कैसे किया जा सकता है, करंट जो है वो फाइनाइट हो और वोल्टेज जीरो हो जाए, कैसे करेंगे, आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, ठीक है जी। तो ये है, a zero of ZS implies no voltage for a current current। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट आप कर दो। तो वन टर्मिनल पेयर नेटवर्क इज एन ओपन सर्किट फॉर पोल फ्रिक्वेंसीज, ठीक है जी। अभी हम नहीं पढ़ा ना, ओपन सर्किट होता है किसके लिए, जब वो पोल हम करार दे रहे हैं। तो ये वन टर्मिनल यानी वन पोर्ट नेटवर्क की बात हो रही है, कि उस फ्रीक्वेंसीज पर जो कि पोल फ्रीक्वेंसीज हैं, इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। और वो फ्रीक्वेंसीज जो ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। वही इम्पिडेंस, वही सर्किट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर इट विल बिहेव डिफरेंटली। ये है समझने वाली बात, ठीक है जी। ये हम आगे बड़ी आसानी से भी आपको समझ में आ जाएगी, इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ कहने के लिहाज से मुश्किल है। अब ये देखें, एक कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है,
उसकी इम्पीडेंस किसके बराबर है 1/CS। ठीक है जी। अब ये एक नेटवर्क फंक्शन भी तो है ना 1/CS ZS। अब हम इस ZS की वो जो है उसका पोल कहाँ पर है, पोल किसे कहते हैं, जिस S की वो वैल्यू जिस पर आपका ZS इन्फिनिटी हो जाए। तो कैसे हो सकता है, अगर S को हम C तो कांस्टेंट होता है ना, S को अगर हम 0 करें तो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो नेटवर्क है जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है, उसमें उसका जो पोल कहाँ पर लाई करता है S0 पर। इसी तरह से इसको 0 कहाँ पे लाई करता है, हर नेटवर्क का 0 भी होगा और पोल भी होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पोल है 0 नहीं। अब ये ZS ये 1/CS है, ये 0 कब हो सकता है, जब S इन्फिनिटी हो, 1/infinity बिकम 0। तो इसका 0 जो है वो, यानी अगर S प्लेन के ऊपर बात करें और इसको शो करना चाहें तो हाउ कैन वी शो, कि इसका पोल जो है, यहाँ शो ही कर देता हूँ उसको, क्या है इसमें, इसका जो पोल है वो यहाँ पर, इस नेटवर्क फंक्शन का पोल ओरिजिन पर है, और 0 कहाँ पर है, वो 0 कहीं इन्फिनिटी पर है। 0 जो है ना वो एट इन्फिनिटी। ठीक है, इस नेटवर्क फंक्शन जो सिर्फ कैपेसिटर है 1/CS। अच्छा, इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट एट पोल फ्रीक्वेंसी S equal to 0। S equal to 0 मतलब क्या है, DC। S equal to 0 मतलब क्या होता है, DC। तो आप ये सोचिए DC के ऊपर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, इट्स एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। ठीक है ना, तो एट DC, यानी DC अगर अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर जो है वो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट एंड अ शॉर्ट सर्किट एट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, हम जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटर की जो इम्पिडेंस है वो क्या होती है, कम होती चली जाएगी। तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी यानी S इनफाइनाइट हो जाए तो कैपेसिटर की इम्पिडेंस इट विल बिकम 0 एंड इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसी तरह से इंडक्टर के लिए उल्टा हो जाएगा, ये आगे बात नजर आ रही है। 0 उसका जो है वो, चलिए यहाँ बना देते हैं, इंडक्टर के केस में जो इंडक्टर अगर है तो वो इम्पिडेंस उसका जो है वो 0 जो है वो ओरिजिन पर है, और उसका जो पोल है वो इन्फिनिटी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एलिमेंट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट एट 0 फ्रीक्वेंसी, यानी DC अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, और जैसे जैसे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे उसकी वो इम्पिडेंस S बढ़ाएंगे, S की मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, तो वो उसकी इम्पिडेंस बढ़ती चली जाएगी। सो इट विल हैव जब जैसे इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी पर जब S इन्फिनिटी हो गया तो उसकी इम्पिडेंस जो है वो इन्फिनिटी हो गई एंड इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो होपफुली ये एक अगरचे ये बातें मतलब ऐसी कोई अजीब बातें नहीं थी, लेकिन पहले हमने इस नज़र से इनको सोचा नहीं था। ठीक है ना, अच्छा जनाब। ओह, यहाँ तक तो हमने पढ़े थे पोल जीरोज, ये हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए किया, ये फिर हम और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि हमने पोल जीरोज वैसे सिस्टम के अपने ही पढ़े हैं। अभी हमने आज जो एक और नई बात पढ़ी जो थोड़ा सा आपने पहले शायद में गौर नहीं हो, कि इनपुट जो फंक्शन है उसके भी पोल्स हो सकते हैं। ठीक है जी, यस इट कैन हैव पोल्स। जैसे अगर आपने यूनिट स्टेप अप्लाई करते हैं तो वो 1/s है, तो उसका बेसिकली 1/s पोल को शो कर रहा है ना वो। और अगर आप साइनोसाइड्स बात करते हैं तो ओमेगा/s का प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, उसके अंदर तो 2 आगे आपके पास आ गया पोल्स। अच्छा चलो, अब ये इस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं जनाब, वी हैव मैथमेटिकल बातें गुजरा ज़्यादा। बेसिकली हमारे पास चूँकि ये
जो एस जेड होती है इसके अंदर जो भी चीज़ें ये रियल फंक्शंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो ए नॉट ए वन अप टू एन जितने भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं इनको रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। बेसिकली ये सारी बात है, ठीक है। अगर ये रियल पॉजिटिव ना हो तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसलिए वेल बाकी कहानी इतनी मैं डिटेल्स में यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करना चाहता, इसमें आप इसका शौक को देख सकते हैं। सारे जो है ना ये फंक्शन, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको रियल होना चाहिए, ठीक है जी, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है नेटवर्क फंक्शन की, दैट नेटवर्क कंपोज ओनली पैसिव एलिमेंट्स आर स्टेबल, ठीक है जी। पैसिव एलिमेंट्स है ना, जेड के अंदर आपके पास रजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब का सब पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये सब के सब स्टेबल हैं। स्टेबल से क्या मुराद है कि हमको एक्साइटेशन यानी कोई इनपुट दें इनिशियल कंडीशन की वजह से, अगर ऐसी एक्साइटेशन है जो कि इनिशियल कंडीशन वजह से है, कोई एक्सटर्नल वो नहीं, बल्कि आपने इनिशियल कंडीशन के ज़रिए आपने इसको चेक किया है, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो बाउंडेड होगी। बेसिकली वो क्या हो रही है, वो आउटपुट जो है वो एक्चुअली वो डाई डाउन होना शुरू हो जाएगी, by which we mean an output that never becomes infinite no matter how large time becomes, जिसको हमने ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट वाली, ये भी फिलहाल एक्साइटेशन जो है वो इनिशियल कंडीशन के लिहाज से की है। वन नोट इफ द एक्साइटेशन इज अ वोल्टेज सोर्स, अगर हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द रिस्पॉन्स विल बी द करंट एट द इनपुट। वन पोर्ट नेटवर्क है, उसके लिहाज से अगर आपने एक्सटर्नल एक्साइटेशन अप्लाई की है वोल्टेज, तो उसी पोर्ट के ऊपर ही आप क्या और चीज़ देख सकते हैं, करंट देख सकते हैं, जो उसके हम उसकी इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर वो एक्साइटेशन या एक्सटर्नल जो अप्लाई कर रहे हैं वो करंट सोर्स है, तो उसी वन पोर्ट नेटवर्क के लिए वहाँ पर आप उस पोर्ट पे और क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज ऑब्जर्व कर सकते हैं इनपुट पर ही। अच्छा, क्योंकि नेटवर्क को स्टेबल होना चाहिए, कंक्लूजन द पोल्स विल एविडेंटली वी रीच फॉर पोल्स विल एविडेंटली अप्लाई फॉर जीरोस। अच्छा, suppose that the denominator of the driving point impedance contains factors s minus sa, ये s subscript a है, where subscript a यानी s subscript a equal to सिग्मा प्लस जी ओमेगा, चलिए ये इसने डाला हुआ ऐसे ही भी तंग करने के लिए, ना भी लिखता तो क्या फर्क पड़ता, सिग्मा प्लस जी ओमेगा कम्प्लेक्स, ठीक है जी। दिस फैक्टर विल इन टर्म इन द टाइम डोमेन रिस्पांस ऑफ द फॉर्म, ये हमने इस किस्म की चीज़ पहले भी देखी थी टाइम डोमेन रिस्पांस की, कि इसका जो रिस्पांस है उसको यहाँ पर k सबस्क्रिप्ट a e पावर ये s सबस्क्रिप्ट a t ए डाल डाल के इसने मुसीबत खड़ी की बिला वजह, दैट इक्वल्स टू k टाइम्स e सिग्मा t इंटू e टाइम्स e पावर j ओमेगा t है बेसिकली। यानी इसने इसको दो उसके जो है ना, इसको अगर अलग अलग फॉर्म में लिख दें, s को सिग्मा और j ओमेगा के फॉर्म में, दी आर टू फैक्टर्स, e पावर सिग्मा जो है वो तो वही रहता है, ये जो ई पावर जी ओमेगा है बेसिकली उसको जब हम करते हैं इट बिकम्स अ साइन, याद आता है उसको हम इफ़ वी कंबाइंड विद द टर्म रिजल्टिंग फ्रॉम, इसका जो कंजुगेट है ये जो एस है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास वो दो सेट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हम उसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट फाइनल आंसर इज समथिंग लाइक दिस, ये के नॉट ई पावर ये ई पावर सिग्मा, ये नॉट होगा मेरा ख्याल गालबन, टी साइन ये ओमेगा ए है गालबन, टी प्लस थीटा ए। तो ये इसकी ये हमने चैप्टर 6 के अंदर ये चीज़ें हमने पहले देखी थी, हमें पता है पहले से। रिस्पॉन्स जो है वो बाउंडेड कब होता है, जब आपके पास ये जो है ना ये वाला ये है ये फैक्टर, ये नज़र फिर नहीं आएगा मान, ये इसका जो आपके पोल आपके जो फैक्टर है उसका ये जो पार्ट पोर्शन है रियल पोर्शन, उसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव इन होना चाहिए, ताकि इसकी वजह से आपका जो ये पूरा रिस्पॉन्स है इट विल बिकम फाइनाइट। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा
तो ये जो है ना e is power some positive quantity will grow up unbounded. But since our argument applies to both poles and zero, we see that poles and zero driving part impedances have negative और जीरो रियल पार्ट्स ओनली. ठीक है जी, नेगेटिव हो तब भी ठीक है, जीरो तब भी ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. In terms of pole and zero locations in the S plane, all poles and zero must be in the left half of the S plane. इसका क्या मतलब हो गया? ठीक है जी, जब ये सिग्मा जो है वो नेगेटिव है या जीरो है तो ये जो पोल्स और जीरोस कहाँ होंगे हमारे? दे शुड बी इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, या बाउंड्री पे भी आ सकते हैं. एंड कैन नेवर अकर इन द राइट हाफ प्लेन. पोल्स एंड जीरोस कैन बी ऑन द बाउंड्री. जब वो सिग्मा जीरो होगा तो वो बाउंड्री पर आ जाएंगे मेरी एक्सेस पे, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है कि ऐसे पोल्स और जीरोस को सिंपल होना चाहिए, यानी रिपीटेड नहीं होने चाहिए. और यहाँ आगे इसने छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि रिपीटेड में क्या होता है. ये है रिपीटेड पोल वाली एग्जांपल. तो उसमें बेसिकली आपके पास ये जो है ना लैप्लास इनवर्स ऑफ एस और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये शो करना चाहता है कि आपके पास डबल पेयर है, डबल पोल है बेसिकली, है ना. ये जो ना, अगर ये स्क्वायर ना होता ये वाला स्क्वायर, तो आपके पास पोल जीरो पेयर होता है, एक प्लस जे ओमेगा ए पर एक माइनस जे ओमेगा पे. जब ये स्क्वायर है यहाँ पर, उसकी वजह से आपके पास डबल पोल हो गया. ये देखिए बेसिकली आपके कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे 4 पोल्स हैं या 2 सेट्स ऑफ पोल्स हैं. जब इसको हम इसका लैप्लास इन्वर्स लेते हैं तो इट बिकम्स दिस थिंग. ये थोड़ा सा इस किस्म की चीज़ों का लैप्लास इन्वर्स आप अगर वहाँ पर टेबल पे देखें तो उसने वो शो किया हुआ था जो चैप्टर 6 के अंदर. तो इट विल हैव दिस थिंग, ये टी इसके अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है टी और 2 ओमेगा ए. ओमेगा ए चलो कांस्टेंट है, बेसिकली जो टी है ये प्रॉब्लमेटिक है, इट्स अ रैम्प फंक्शन ग्रोइंग अपवर्ड्स. तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव एनवलप. तो ये साइन ओमेगा ए टी जो है दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस टी एज वेल. तो इट इज़ एन अनबाउंडेड आउटपुट. ठीक है जी, इसको साइनोसाइड ऑफ लीनियरली राइजिंग एम्पलीट्यूड उसने इसका नाम दिया है. ठीक है जी. तो मल्टीपल पोल्स एंड जीरोस आर परमिटेड एट अदर लोकेशंस, यानी एस जो आपका जियो ओमेगा एक्सिस है इसके ऊपर आपके मल्टीपल पोल्स या जीरोस अलाउड नहीं है स्टेबल उसके लिए. ठीक है जी. और वैसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यानी डीप हो जाए और ये तो वहाँ पर आपके पास अलाउड है, क्योंकि वहाँ से उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. उनकी जो फॉर्म बनती है वो इस किस्म की बनती है टी एस पावर ये एम से बता दिया ई माइनस सिग्मा टी. तो जब हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स जीरो एज वेल. ठीक है, मतलब आपको पहले भी जिक्र किया था कि एक फैक्टर ये है टी एस पावर एम वाला और एक फैक्टर ई माइनस ये सिग्मा टी वाला. तो इनमें से जो इसका ग्रो रेट है ग्रोथ का या डिके का, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, उसका रेट इससे तेज़ होता है. एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको हम कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं. एंड वी कैन उसमें क्या करते हैं, उनके जो डेरिवेटिव लेते हैं फिर उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो वी कैन वेरीफाई कि ये ज़ीरो के बराबर ही होता है. तो जो आपके पास पोल्स और जीरोस लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर हैं जियोमेट्रिक एक्सिस पे नहीं, उनके मल्टीपल पोल या जीरोस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा जी, पी एस और क्यू से पॉलिनोमियल्स हैं विच आर प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स वगैरह वगैरह are all real and positive or the product of these factors from there is no kind of negative sign to be introduced. यानी पी एस और क्यू एस जो हैं ये असल सारी बात है कि इसके अंदर जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे ये सारी असल बात है. ये मैथमेटिकल बात है, चेक भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं किसी और तरीके से भी. वो सारे के सारे रियल और पॉजिटिव होंगे. नो कोफिशिएंट मस्ट बी ज़ीरो. ठीक है जी, कहीं पॉलिनोमियल से कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए. हाँ, ये हो सकता है कि सारे इवन हो या सारे ऑड हो मिसिंग, हाँ ये हो सकता है. there is no way for negative signs to be introduced and without negative signs terms to cancel with positive there is no way to for a coefficient to be zero.
अच्छा जनाब, इवन पॉलिनोमियल से होता क्या? इवन पॉलिनोमियल, इफ पीएस इज कंपोज ऑफ फैक्टर्स लाइक एस स्क्वायर प्लस डी ओनली, देन पीएस इज एन इवन पॉलिनोमियल। ये देखना एस स्क्वायर प्लस डी, ये डी शो किया कि इसका रेस पावर एस इंटू रेस पावर डी मल्टीप्लाई एस पावर जीरो से कर ले। तो इसमें एस की सारी जो पावर्स हैं वो इवन फंक्शन, इवन पावर्स हैं। तो इसको इवन पॉलिनोमियल कहते हैं। द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स आर जीरो। अच्छा, इफ पी एस हैज सिंपल जीरो एट द ओरिजिन, द टर्म एस स्क्वायर प्लस डी आर मल्टीप्लाइड बाय एस एंड एन ऑड पॉलिनोमियल रिजल्ट्स, मीनिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स आर जीरो। अगर इसको हम एस से मल्टीप्लाई कर दें तो एस क्यू प्लस डी एस हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इवन कोएफिशिएंट्स के जो यानी एस की जो पावर्स होंगी वो ऑड पावर्स आ जाएगी, तो सारी ऑड हो जाएगी। तो ये भी अलाउड है कि सारे इवन हो या सारे ऑड हो, ये हो सकता है। और प्रॉपर्टी क्या है, विभिन्न लो एट हाई फ्रीक्वेंसी हम देख चुके हैं पहले भी, अभी पिछले पेज के ऊपर देख चुके हैं। Emittance of inductor and capacitor changes frequency at very high frequency. The emittance of the two elements ZL is equal to LS and YC is equal to CS will dominate the network emittance functions in the sense. अच्छा, अब वो बात कर रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है ना, ठीक है जी, तो हाई फ्रिक्वेंसीज पे क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसीज पे जो आपका इंडक्टर है ना, क्योंकि उसकी जो इम्पिडेंस है ZL, ऐसे जैसे बढ़ता जाएगा LS वो डोमिनेट करेगा। और जो एडमिटेंस है वो, अगर एडमिटेंस की बात कर रहे होंगे तो कैपेसिटर जो है ये वन CS होता है ना इसकी एडमिटेंस, तो जैसे S बढ़ता जाएगा C इंटू एस विल बी मोर इन मैग्नीट्यूड। तो उसको जो कैपेसिटर का जो एडमिटेंस है दैट विल डोमिनेट, ये है सारा समझने की बात। that in the sense that either ZL or YC will be very large compared to any other element emittance, यानी और जो चीज़ें होंगी उनको आप उस वक्त इग्नोर कर सकते हैं। If L is not present in the network whose impedance we are computing, or if C is not present, then either the resistor will be the dominant element. अगर ये L और C ना हो तो फिर आपका जो डोमिनेंट एलिमेंट है ना वो सिस्टम का वो रजिस्टर ही रहेगा, ठीक है जी। Then either resistor will be the dominant element or the equivalent network will be a short circuit, meaning ZC is equal to 1 over CS और Y is equal to ZC, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर रजिस्टर नहीं है तो शॉर्ट सर्किट होगा, नहीं आप S बढ़ा लें तो S इन्फिनिटी पर क्या होगा, 1 over CS ज़ीरो हो जाएगा, तो ZC विल बिकम अ शॉर्ट सर्किट सॉर्ट ऑफ थिंग। और इम्पिडेंस अगर है तो क्या, एडमिटेंस इंडक्टर तो क्या होगा इसके लिए एडमिटेंस के केस में S इन यहाँ पर देखें, अगर S इन्फिनिटी हो जाए तो 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम ज़ीरो, तो एडमिटेंस जो होगी उसकी वो ज़ीरो शो हो रही होगी। अच्छा, वन ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटी शो इन द फिगर 10.18, ये है जनाब 10.18 जो है यहाँ पे राइट पे शो की हुई है कि आपको जो सर्किट जो है आइदर इट विल एक्ट एज अ हाई फ्रिक्वेंसी पर जो वन पोर्ट नेटवर्क में एक्ट एज जस्ट अगर इंडक्टर और जस्ट एक्ट एज कैपेसिटर और जस्ट एक्ट एज अ रजिस्टर। तो डिपेंड करता है कि उसमें किस किस्म की वो चीज़ें हैं। और इसमें ये भी है कि आर इक्वलेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि वन पोर्ट नेटवर्क जो है लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर
वो किससे ऐड करेगा। तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, एस ज़ीरो हो जाए तो आपकी जो ये देखें एस ज़ीरो हो तो 1/CS इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है जी। तो लो फ्रिक्वेंसी पर आपका जो इम्पोर्टेंस है वो सारी की सारी बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ द कैपेसिटर के तौर पर शो हो रही होगी। और लो फ्रिक्वेंसी पर अगर एडमिटेंस की बात करेंगे तो वो एडमिटेंस ऑफ द इंडक्टर जो होगी वो डोमिनेट कर रही होगी। अच्छा जी, ऑर्डर की कहानी जो है, हाँ अब चूंकि हमने लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी में देख लिया कि या तो रजिस्टर है या कैपेसिटर है या इंडक्टर है, ठीक है ना, यही है ना, हमने देखा अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क फंक्शन है उसका जो डिग्री है हाई फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -1, 0 या +1। ठीक है जी। यानी या तो नेटवर्क फंक्शन या तो LS के बराबर हो जाएगा या R के बराबर हो जाएगा या 1/CS के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर R के बराबर है तब तो डिग्री जो है वो 0 हो गई। ठीक है जी, रिलेटिव डिग्री नोमीटर पर। और अगर वो LS के बराबर है तो उसकी डिग्री 1 के बराबर हो गई। ठीक है, डी नोमीटर में जो है वो 1 है, नोमीटर के अंदर S है, S की रेज़ पावर 1 है, तो उसकी जो n-m रिलेटिव डिग्री 1 के बराबर हो गई। अगर वो NS जो है नेटवर्क फंक्शन वो 1/CS के बराबर हुआ है तो उस केस में आपकी रिलेटिव डिग्री -1 के बराबर होगी। ठीक है जी। तो नेटवर्क फंक्शन के लिए एक्सट्रीम या फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इसकी जो ऑर्डर है वो 1 ± 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये है डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स फॉर टाइम फंक्शन में डिफर बाय 1 एट द मोस्ट। लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी ऐसा ही है। ठीक है जी। सो ये थोड़ी सी बातें ज़रा आपको अजीब सी लग रही होंगी, अभी वैसे भी नींद आ रही होगी सब लोगों को सुबह से बैठे में। तो अगली थोड़ी सी ये आर्टिकल हम कहीं पहुंच जाएं ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। क्या रह गया है, ये आखिरी एग्जांपल ही है गालबन, ये कुछ और भी है इसमें, 3 एग्जांपल था भाई इसके अंदर। चलें खैर, इम्पेडेंस ऑफ, अच्छा इसने कहा जी 3 एग्जांपल्स के अंदर 3 उसने मुख्तलिफ नेटवर्क फंक्शंस दिए हुए। हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये नेटवर्क फंक्शंस करेक्ट हैं या सूटेबल हैं कि नहीं वन पोर्ट नेटवर्क के लिए। कभी हमने ये पढ़ा कि वन पोर्ट नेटवर्क में जो डिफरेंस इन डिग्री है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नज़र आ डिफरेंस इन डिग्री जो है ये, लेकिन इसमें एक फ़र्क है तो 1 का या 4 है 3 है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आया हुआ है। दैट्स प्रॉब्लमेटिक थिंग। हमने भी पढ़ा है कि नेटवर्क फंक्शन के अंदर जो पॉलिनोमियल्स हैं ऊपर और नीचे दोनों, एक तो उनके अंदर कोई भी मिस नहीं होना चाहिए फैक्टर, यानी S4। अब इसमें S³ भी मिस है, बेसिकली S4 तो है, S³ नहीं है, तो मिसिंग एक 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 जो पावर है वो मिस हो रही है, एक एक टर्म मिस हुई हुई है। सो इन द न्यूमरेटर 1 कोफिशिएंट इज मिसिंग, ये S³ वाला मिसिंग है और ये माइनस नेगेटिव है, तो ये हो नहीं सकता। ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि इसका जो ज़ीरो जो है वो एक राइट हाफ प्लेन के अंदर है, जो कि अलाउड नहीं है। सो इट कैन नॉट बी अ करेक्ट फंक्शन, नेटवर्क फंक्शन नहीं हो सकता ये। अच्छा एक और ने ये थोड़ी तस्वीर थोड़ी सी, हालांकि मैंने कोशिश तो बड़ी की थी लेकिन फिर भी कुछ अच्छी नहीं आई। ये ऊपर लिखा हुआ है S², यानी S³ है क्या है ये भाई, S³ है फिर S² है फिर S और नीचे S4 S³ S²। अच्छा बज़ाहिर तो ठीक लग रही थी लेकिन इसके अंदर एक मसला हुआ। ये देखिए इसके अंदर पॉलिनोमियल जो नीचे वाला है इसके अंदर जो है वो टर्म्स पूरी नहीं है, मिसिंग है। ठीक है जी। तो ये भी जो है ना ये अलाउड नहीं है।
The terms of lowest degree in the numerator is of degree 0, while that in the denominator is 2. ठीक है जी. तो लोएस्ट जो डिग्री है वो भी उसके अंदर भी फ़र्क जो है वो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, वो भी अलाउड नहीं है. इस तरह से डबल पोल एट द ओरिजिन शो करता है, जो कि नॉट अलाउड है नेटवर्क फंक्शन के लिए, वन पोर्ट. अच्छा, अगला देखें. ये है बेसिकली एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 ऊपर है और नीचे 2s स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 है. तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारी जो है ना ये शराइत पूरी हो रही है. ऑल कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड. हाँ, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें गलती है या नहीं है, लेकिन जो एक नेटवर्क फंक्शन होने के लिहाज से वैलिड वो सब बातें दुरुस्त हैं कि सारे जो हाईएस्ट डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री उसमें आपस में फ़र्क, इसकी हाईएस्ट टू में फ़र्क जो है वो 1 से ज़्यादा का नहीं है और सारी टर्म्स मौजूद हैं, कोई मिसिंग नहीं है, सब पॉजिटिव है. ठीक है जी. तो यहाँ पर इसने टेबल 10.2 में ना नेसेसरी कंडीशन को कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव. ठीक है जी. पोल्स एंड जीरो मस्ट बी कंजुगेट इफ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स. अगर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आते हैं तो उनको कंजुगेट होना चाहिए. ठीक है जी. रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरो मस्ट बी नेगेटिव और जीरो. इन एडिशन इफ रियल पार्ट इज जीरो देन द पोल एंड जीरो मस्ट बी सिंपल. सिंपल का क्या मतलब था कि वो रिपीटेड नहीं होते. पॉलिनोमियल्स पी एंड एस क्यू एस में नॉट हैव मिसिंग टर्म्स. मिसिंग टर्म्स नहीं होनी चाहिए. या तो सारे इवन हो या सारे ऑड टर्म्स मिसिंग हो, वो अलाउड है. ठीक है जी. डिग्री ऑफ पी एस एंड क्यू एस में डिफर बाई आइदर 0 और 1 ओनली. ठीक है जी. टर्म्स ऑफ लोएस्ट डिग्री में डिफर इन डिग्री बाई 1 एट मोस्ट. ये भी एक शर्त है. लोएस्ट जो डिग्री वाला जो टर्म है उसके अंदर भी जो फ़र्क है ऊपर नीचे में वो 1 से ज़्यादा ना हो. ठीक है जनाब. सो these are all the conditions which are tabulated at one place, table 10.2. तो अगला जो आर्टिकल है ना वो फिर है, वो हाल है हम आज छोड़ दें. इस चैप्टर के अंदर भी बड़ा कुछ बाकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ा मेहनत करके हम आएंगे तो विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर. आज के लिहाज से हम तो बहुत सारा चैप्टर है यार, मैं तो चैप्टर देख के परेशान हो गया, क्योंकि हमसे आधा कवर भी नहीं हुआ. ऑलमोस्ट 20 पेजेस जो है ना वो अभी भी बकाया जाता है. उफ. चलो खैर. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. ये जो आपके पास क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोल और जीरो लोकेशंस फॉर ट्रांसफर फंक्शन के केस में आएगा. ओके. आज मैं भी थक गया हूँ. हुआ ये कि मैंने ईद के फ़ौरन बाद लगवा लिया इंजेक्शन, बेसिकली ये वैक्सीन वाला, तो उसके बाद से तबीयत काफ़ी मेरी गड़बड़ हो गई. तो उसे डरने की ज़रूरत ऐसे नहीं है.